فوج نے دو دشمنوں سے پاک سرزمین کو پاک کر دیا۔ پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں ایف سی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایف سی کے لانس نائک محمد عمران نے جام شہادت نوش کیا۔ 2 سپاہی زخمی۔ شہید محمد عمران جمرود میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں لڑکی اغوا، 2 زخمی۔ دعا اور حارث پیدل چل رہے تھے۔ کار سواروں نے لڑکے کو گولی مار کر لڑکی کو اٹھا لیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ عینی شاہد رکشہ ڈرائیور کا بیان ریکارڈ، لڑکی کا موبائل فون ریکارڈ طلب۔ لڑکی کے اہل خانقاہ لاہور کے رہائشی مظفر نامی نوجوان پر شبہ کا اظہار۔ دعا کی امریکہ میں دوران تعلیم مظفر سے ملاقات ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے مشاورتی عمل میں تاخیر۔ اپوزیشن کا پیر کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ ممبران کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کا خط چیئرمین سینٹ کو موصول۔ صادق سنجرانی اور اسد کیسر کل غور کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم آفس نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن کے ناموں پر اعتراض لگا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے۔ عدالت سے رجوع کیا گیا تو بدقسمتی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا، سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا فیصلہ درست ہوا۔ اقامہ پاناما سے سنگین جرم ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین پاکستان کے کسی آئین میں نہیں۔ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پھر ایک پیج پر آ گئے۔ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کا دورہ ایم کیو ایم مرکز۔ وزیر خارجہ نے کہا، ایم کیو ایم نے مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ ایم کیو ایم کا وفد 5 دسمبر کو وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، سندھ کے شہری حصے معاشی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ مٹھائی اور پھول کا دور پرانا، ٹماٹر گفٹ کرنے کا آ گیا زمانہ۔ پاکستان میں ٹماٹر مہنگے ہوئے تو سکھ یاتری ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ اور ادرک کا تحفہ لائے۔ کرتارپور آنے والے یاتریوں کا کہنا ہے، پاکستان میں قیمت بڑھی تو اپنے بھائیوں کے لیے سستے ٹماٹر لے کر آئے ہیں، جن سے لنگر تیار کیا جائے گا۔ سندھی ٹوپی اور اجرک ہماری آن بان شان، قومیت کی پہچان۔ سندھی کلچر ڈے پر سندھ بھر میں عید کا سما۔ اسکولوں میں بچوں اور منچلوں کے ٹیبلوز، سڑکوں پر ریلیاں، سندھی گیتوں کی دھنوں پر شہریوں کا رقص۔ بچے بڑے سبھی ثقافت کے رنگ میں رنگ گئے۔ بدین میں صوبے کے نقشے سے مزین 60 فٹ طویل پرچم۔ کراچی پریس کلب کے باہر پروقار تقریب۔ اور حکومت مفاہمت کی بات تو کرتی ہے مگر اس پر عمل کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے دیے گئے شہباز شریف کے ناموں پر اعتراض کر دیا تو اپوزیشن نے معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کر دیا۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے۔ عدالت سے رجوع کیا گیا تو بدقسمتی ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھ کر چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے سابق بیوروکریٹس ناصر محمود کھوسا، جلیل عباس جیلانی اور اخلاق احمد تارڑ کے نام تجویز کیے۔ تاہم شہباز شریف کے ان ناموں پر وزیر اعظم آفس نے اعتراض کر دیا۔ ادھر الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے مشاورتی عمل میں تاخیر پر اپوزیشن نے پیر کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ عمران خان فارن فنڈنگ کیس کے باعث الیکشن کمیشن کو دانستہ طور پر غیر فعال رکھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے کہا، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے۔ عدالت سے رجوع کیا گیا تو بدقسمتی ہوگی۔ یہ عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں کوئی ایک معاملہ 8 سال بعد
सियासी बड़ा मामला अदलिया के पास जाता है, जिस तरह बुश का इलेक्शन था जिसको को 12 साल हो गए, 13 साल उस वो एक मामला गया था सियासी मामला अदालत में, वरना अदालत में सियासी मामला को नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम का खत चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो गया है। सादिक संजरानी और असद कैसर कल गौर करेंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं ख्वातीन जजेस ज़हनी तनाव से आज़ाद रहकर अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द ख्वातीन जजेस की तैनाती होगी। मज़ीद कहा, हमें ज़िंदगी के हर शोबे में ख्वातीन को बाख्तियार बनाना होगा। मुकदमात में ख्वातीन की ज़बान से मुतल्लिक नरमी की ज़रूरत है। Being a woman itself gives an indication to the court that some concession may be awarded, may be extended in the matter of bail. Now we have as many as almost 300 women judges in the district judiciary, and in the High Court now we have female judges, and inshallah soon we shall have a judge or two women judges in the Supreme Court. मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बीमारी पेचीदा है, उन्हें इलाज के लिए बोस्टन ले जाया जा सकता है। लंदन के अस्पताल में कंसल्टेंट डॉक्टर काजी नैयर जमान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से इस हवाले से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त लंदन में डॉक्टर काजी नैयर ज़मान साहब ये मौजूद हैं, जो कि 25 साल से यूके के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर काम भी करते रहे हैं, कंसल्टेंट हैं। इनसे हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं इनसे पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ चंद दिनों से लंदन के अंदर हैं, मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर उनके टेस्ट जारी हैं, आप भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। ये बताएं कि जो उनकी बीमारी कहा जा रहा है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो डायग्नोज नहीं हो पा रहे, पता नहीं चल रहा कि क्यों बार बार जो है वो गिरते हैं, इसकी क्या आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये बेसिकली एक बीमारी होती है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, जिसमें प्लेटलेट्स की जो होती है कमी हो जाती है। बेसिकली प्लेटलेट्स हमें चाहिए क्लॉटिंग मैकेनिज़्म के लिए। तो अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है तो फिर ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वहाँ पे जाके वो प्लग करते हैं और ब्लीडिंग को कम करते हैं या बंद करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बॉडी खुद अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जिससे प्लेटलेट्स की मिकदार कम होती है। जब प्लेटलेट्स की मिकदार कम होगी तो टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग की। तो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो ये है कि उनको ये डायग्नोज हुआ, ये प्राइवेसी हर एक हॉस्पिटल की होती है कि वो ये शेयर ना करें, लेकिन जो हमें अखबारात से और जिससे पता चले उसके मुताबिक उनको ये बीमारी है, इट रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू स्टेरॉइड्स। अगर स्टेरॉइड आपको दें तो ये रिस्पॉन्ड कर सकता है और अच्छा होता है, इसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। प्लेटलेट्स हैं, इनकी बार बार गिरने की जो कोई 3 वजूहात आप क्या समझते हैं, कौन सी होती हैं? ज़्यादातर इसमें जो मैं उनकी जो बीमारी के बारे में जो मैंने पढ़ा है या जो मुझे मतलब है जो जितना मैं अखबारात से या टीवी से सुन के आया हूँ, उसमें यह है कि जो बीमारी है वो प्लेटलेट्स की कमी है। ज़्यादातर इसमें ऑटो इम्यून होता है जिसमें इम्यूनिटी के उसमें होता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एंटी प्लेटलेट्स पे भी हैं। इसका मतलब है कि उनके हार्ट के लिए जो या डायबिटीज़ के लिए जो अगर है तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, तो वो भी प्लेटलेट्स को कम कर सकती हैं। और तीसरी में कभी कभी हमें इसका कोई काज का पता ही नहीं चलता, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लेकिन ये सब रिस्पॉन्ड करती हैं स्टीरॉइड को। स्टीरॉइड का रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छा है। जो जहर खोरनी कहा जाता है, सम टाइम कोई ऐसी भी आती है कि कोई ऐसा एल्युमिनियम किस्म का ऐसा जहर भी होता है जो अगर पेशेंट के जिस्म के अंदर किसी वजह से भी आ जाए तो उससे भी हो जाता है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत से इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत है। और वो सिर्फ प्लेटलेट्स को ही क्यों कम करे, फिर वो उसका रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी के और हिस्सों पे भी होता है, तो दैट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक टू प्लेटलेट्स। तो उसके लिए फिर मैं और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैकबर्न में आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तानी निजात रिजवान अली शाह के इलेक्शन ऑफिस को अवाम के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में हल्के के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और रिजवान अली शाह की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। तनवीर नकवी की रिपोर्ट। रिजवान अली शाह इमिग्रेशन एडवाइज़र और मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत और ब्लैकबर्न से वाहिद ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार हैं। इफ्तिताही तकरीब से हाजी शेर आलम, राजा वसीम कयानी, चौधरी मोहम्मद इस्माइल, मलिक इब्रार समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खिताब किया। What makes Brexit so special that a referendum is being allowed to the public?
Do we not vote for people to represent us on matters which affect us because we are not sure about how to deal with them? You appoint people like councillors, you appoint people like MPs. The reason for that is because there are some issues that we don't understand and we want them to represent us in those matters. आपने काम करना है, काम करेंगे तो इंशाल्लाह लेबर को और टोरी को जो इतना मैसेज तो भेज देना कि हम एक हैं। हमारी तमाम जो कोशिशें और तमाम जो है ना सपोर्ट रिजवान अली शाह के साथ है। तकरीब के आखिर में रिजवान अली शाह ने खिताब किया और कहा कि वो पहले भी ब्लैक बर्न के आवाम की खिदमत करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। यहाँ पर जो पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, वो यहाँ के लोगों को भूल चुके हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के मसाइल सुनने को तैयार नहीं है। ब्लैक बर्न जो है ये एक हब है, बिजनेस हब है, लेकिन लोगों की वॉइस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ के लोगों की आवाज़ हूँ, उनके मसाइल लोग मेरे पास आते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, तो मैं उनके मसाइल को बेहतर समझ सकता हूँ। तो मेरी जो है वो अपील है तमाम लोगों से, पूरे ब्लैक बर्न के लोगों से, कि 12 दिसंबर को जब इलेक्शन है तो बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें। और हमें पूरा यकीन है जो कम्युनिटी ने मेरा साथ दे रही है, कम्युनिटी पूरी वेलकम कर रही है जिस तरीके से हमारा हर जगह पर हो रहा है, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे। हल्के की आवाम का इस मौके पर कहना था कि रिजवान अली शाह इंसान दोस्त लीडर हैं और तवक्को करते हैं कि वो इसी तरह आवाम की फलाह के लिए काम करते रहेंगे। ज़्यादा उम्मीदवार जो हमारे एशियन में ये खड़ा हुआ है, इसकी हमें परजोर जितना भी हो सके इसकी मदद करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि 12 दिसंबर का सूरज रिजवान अली शाह की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। ख़वातीन, हर घरेलू तशद्दुद और जहनी तनाव के हवाले से हज़रत बाहू ट्रस्ट सेंटर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, पुलिस हुकाम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बरतानिया में नौजवानों को नाइफ क्राइम, घरेलू तशद्दुद, ड्रग्स और जहनी तनाव जैसे वाक़यात से बचाने के लिए हज़रत बाहू सेंटर में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, मकामी पुलिस ऑफिसर्स, सोशल वेलफेयर के नुमाइंदगान और साबिक MPs ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा, ख़ातीन मुआशरे को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन घरेलू तशद्दुद उनके लिए जहनी तनाव का बायस बनता है। इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, साबिक MP खालिद महमूद, पीर फयाज उल हसन कादरी, सलमा याकूब, मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेमिनार का मकसद बरतानिया में घरेलू तशद्दुद और जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात से नौजवानों को आगाह करना था, ताकि उनको बताया जा सके कि इन मुश्किलात से कैसे बचा जा सकता है। In our community that was very, very important, and most of people doesn't know all these facts and figures. So I think what they have arranged today, I think that's very, very useful for the future of this area as well and for the community. So today is the launch of 2 faith-inspired videos by the Bahu Trust, which has been funded by the local Community Safety Partnership. And the videos are designed to be shared across communities to encourage conversation. And I hope and I pray that it develops confidence within our youngsters to speak up, and also within our women to speak up when they do experience domestic violence at home. यहाँ जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं उन्हें सोच के बात चलनी चाहिए कि अगर रहना है तो अवश्य सुर से गठे होके रहें। इस वक्त अभी भी जहाँ तक मर्द विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो शर्म के मारे वो काफ़ी आगे नहीं आते हैं कोई मदद लेने के लिए। तो इससे ये जो मैसेज है, जो भी विक्टिम हो, मर्द हो या औरत हो, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ सर्विसेज है, उनके लिए मदद है। बच्चे आजकल इतनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें, नाइफ्स और मशेटीज़ लेकर आ रहे हैं। पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और उनको इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए कि ये चीज़ें उनके पास आखिर आ कहाँ से रही हैं। We as a masjid have decided that it's our responsibility to address these 2 issues of knife crime and domestic abuse. Just attended the launch of Bahu Trust about violence within the community, and I'd like to say that I think it went pretty amazing. Neil Kirkpatrick, from the Hall Green constituency manager. I'm sort of, the event that we've just had here is absolutely fantastic, and the support that the Bahu Trust have given us in sort of, tackling issues of violence and domestic violence in the community. हम बता सके कम्युनिटी में कि ये वायलेंट क्राइम्स दोनों जो हैं, नाइफ क्राइम और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ जो है, ये वायलेंट क्राइम्स के कैटेगरी में फॉल इनटू करते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी कम्युनिटी पे बेतहाशा मुज़र गुजरता है। हमारे नबी पाक ने सबसे जो शानदार तरीका बताया वो ये था कि जब भी एक दूसरे से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो।
جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے کر ملو، اور جب بھی کسی کو مجبور دیکھو، معذور دیکھو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ساتھ دو۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ کمیونٹی میں بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے خواتین کو ان کے جائز حقوق سے آگاہی دینا ہوگی۔ ڈومیسٹک وائلنس اور نائف کرائم کے جو کرائم یہاں بڑھتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو اویئرنیس کے لیے جہاں سرکاری سطح پر کام ہو رہا ہے، وہاں نجی سطح پر بھی مقامی چیریٹیز اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ القیوم فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ عبدالقیوم کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم صحت، تعلیم، ایمرجنسی ریلیف اور یتیم بچوں کی کفالت جیسے فلاحی پروجیکٹس کر کے خدمت خلق میں مصروف ہے، اور وہ اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے واٹسن میں نمائندہ 92 نیوز عرفان احمد سے بات کی، آپ بھی سنیے۔ یہ 2006 میں نے کام شروع کیا ہے، جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا۔ لوگ بھی پیسے دیتے تھے، میں خود یا میری فیملی سب لوگ پیسے دیا کرتے تھے۔ میں پاکستان میں گیا اور دیکھا کہ جو حال ہے ان پیسوں کا یا اس سامان کا، یا جس طرح لوگوں نے اس میں بدمزگی کی اور خیانت بھی کی، تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں کوئی ایسا کام شروع کروں، ایسی NGO بناؤں جس کام کو لوگ دیکھ سکیں، اور اگر خود اس میں کوئی بجائے اس کے کہ ان سے پیسہ مانگا جائے، بلکہ وہ خود کام کریں، ان کو بتایا جائے کہ یہ کام ہے اور وہ اس کام کو خود کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا اور جاری رہا، آہستہ آہستہ اس میں لوگ آتے گئے اور کام بڑھتا گیا۔ میں وہاں یعنی ڈسپنسری بھی میں نے قائم کی، ایمبولینسز وہاں رکھی میں نے، کھویرٹا میں ایک ایمبولینس تھی، سمانی بارڈر سائڈ ایریا میں اب بھی یعنی ایمبولینس ہے، کام کر رہی ہیں، میرپور میں ہیں، ڈسپنسری وہاں میرپور میں چلتی رہی ہے، مسجد وہاں 1 کروڑ روپیہ بنایا میں نے، MDA نے دے کر اس کی زمین کو دوبارہ الاٹ کر دیا تھا، کیونکہ مین روڈ کی زمین تھی، زیادہ پیسے تھے، انہوں نے پیسے لے کے الاٹ کر دیا اس ایریے کو۔ میں نے کیس کیا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، اور 1 کروڑ روپیہ لگا کے میں نے وہ مسجد بنائی۔ طرح طرح کے لوگ ہیں جی، یہ کام جو ہے اب اس میں خیانت بہت ہو گئی ہے، میں بھی یہ جانتا ہوں، لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ صحیح لوگوں کو پیسے کم ملتے ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور یہ کاروبار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کاروبار سے بچنے کے لیے یہ NGO بنائی تاکہ میرے دوستوں کا، میرے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا پیسہ بچ سکے اور جائز پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو اور اچھی جگہ لگ سکے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پیرس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر عہدیداران شریک ہوئے۔ اسی پر دیکھیے راجہ حبیب کی رپورٹ۔ پیرس کے نواحی علاقے بوبینی کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی اور صدارت سابق کوارڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کامران یوسف گھمن نے کی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی فرانس کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر نعروں کی گونج میں یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب سے خطاب میں کامران یوسف گھمن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں ملک کو خوشحالی کی جانب گامزن کیا، لیکن سازشوں کے ذریعے پارٹی کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار میں کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی سیاسی شعور رکھنے والے لوگ پیپلز پارٹی کو ایک بہترین سیاسی جماعت سمجھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلاول بھٹو جیسا نوجوان اور قابل لیڈر پارٹی کی قیادت کر رہا ہے۔ آج تو موجودہ حکمران تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اصل تبدیلی جو ہم اور آپ لوگ بول رہے ہیں نا، ہم کو جو طاقت بولنے کی دی ہے وہ ہی ایک تبدیلی ہے۔ اصل میں وہ تبدیلی ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو دی۔
यूसुफ घुमन का मजीद कहना था कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सूबों से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होकर विफाक में हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनेंगे। सऊदी अरब में बाबा उर्दू सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की बरसी की बिनास्बत तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुक़र्ररीन ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से मुनक़्क़द करदा तकरीब में मुक़र्ररीन ने कहा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ज़िम्मेदार इख़बार के ज़रिए जिस तरह बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया, इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी सैफुल्लाह खान का कहना था कि हमेशा वो कौमें आबाद रहती हैं जो अपने कौमी हीरोज़ को याद रखती हैं। हम बहसीत कौम आज मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और दीगर आज़ादी के हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी काविशों से हम आज आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी का कहना था कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हमारे कौमी हीरो हैं। वो अपनी ज़ात के अंदर एक अदारे की मानंद थे। इनका कलाम और सहाफ़ती खिदमत तारीख का सुनहरी बाब है। तकरीब से डॉक्टर तारिक अजीज, वकार नसीम वामिक, मखदूम अमीन ताजर, महमूद अहमद बाजवा, प्रोफेसर रफ़ीक गौहर, सजाद चौधरी समेत दीगर शुरका ने भी खिताब किया। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर खैरसगाली का जज्बा लिए जद्दा पहुंच गया, जहां जहाज कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद अकरम ने सऊदी बहरिया के अफसरान, काउंसिल जनरल, सफारतकारों और पाकिस्तान कम्युनिटी के नुमाइंदों के एजाज में जहाज के डेक पर इशारा दिया। जद्दा से देखिए अदील रियाज की रिपोर्ट। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर खैरसगाली का जज्बा लिए जद्दा पहुंच गया, जहां जहाज कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद अकरम ने सऊदी बहरिया के अफसरान, कौंसल जनरल, सफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों के आज़ाज़ में जहाज के डेक पर इशाया दिया। इशाया तकरीब से खिताब करते हुए कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने सऊदी हुकूमत की बेहतरीन मेहमान नवाजी और उम्रा की सादत देने पर शुक्रिया अदा किया। Here I would like to make a special mention of ongoing conflict in Indian occupied Jammu and Kashmir area. Atrocities in Kashmir by Indian Army have reached its high point in recent past. The people of Jammu and Kashmir are in constant state of suffering owing to human rights violations by Indian Army. India has enforced curfew in the region since August 2019, thereby depriving Kashmiri people of their basic right of self-determination. इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफा बरादराना ताल्लुकात हैं जो कि दिफा, तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बढ़ रहे हैं। Moral, diplomatic and political support till the fulfillment of their just struggle for right to self-determination. बाद कौंसल जनरल के हमरा सऊदी और पाकिस्तानी बहरिया के अफसरान ने पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा। PNS आलमगीर के अमले ने जद्दा में फायर फाइटिंग ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत भी हासिल की, जबकि PNS आलमगीर बहरा रूम में तुर्किश बहरिया के साथ मुश्तरका पेट्रोलिंग में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापस रवाना हो गया है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को बरसर इक़्तिदार आए 5 साल हो गए और इस मौके पर गौताखोरों ने समंदर की तह में जाकर अपने शाह से मोहब्बत का इजहार किया। खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल सऊद के 5वें यौम बैत के मौके पर सऊदी गौताखोरों ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। 7 रुकनी टीम ने समंदर की गहराइयों में पहुंचकर कौमी परचम लहराया। इसके साथ ही उन्होंने शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद की तस्वीर भी थाम रखी थी। गौताखोर टीम के सरबराह का कहना था कि मोहब्बत का इजहार हर शख्स अपने तरीके से करता है, हमने अपने तौर पर इजहार किया है। और अब पाकिस्तान के मौसम और रौनक की बात करें तो वादी कुमराट में बर्फबारी का सिलसिला थमा तो मुल्क भर से सयाहों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादी का रुख कर लिया है। दीरबारा से दाऊद वर्दक की रिपोर्ट देखिए। दीरबाला की वादी कुमराट दुनिया के किसी भी खूबसूरत सियाहती मकाम से कम नहीं। बर्फबारी से तो इस वादी का हुस्न मजीद निखर जाता है। गुज़िश्ता चंद रोज की बर्फबारी के बाद न सिर्फ पहाड़ों बल्कि वादी के मैदानी इलाके ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कई इंच बर्फ और शदीद सर्द मौसम का मजा लेने मुल्क के दीगर शहरों से सयाहों ने कुमराट का रुख कर लिया है। सयाह दिन भर बर्फ पर हल्ला गुला करते ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं।
रात के वक्त सर्दी का मुकाबला करने के लिए आग के गिर जमा होकर खूब एंजॉय करते हैं। दाऊद वर्दिक, नाजीटी न्यूज, दीरबाला। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नाजीटी न्यूज यूके।